Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are learning the column chromatographic techniques for ion exchange chromatography. इससे पहले आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और मैंने इसका बताया था कि क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के तहत प्रोटीन जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आइसोलेट होती हैं और चार्ज जो होता है पीएच डिपेंडेंट होते हैं. नाउ द कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इंक्लूडिंग द चॉइस ऑफ कॉलम, choice of water insoluble support, that is the stationary phase, choice of buffer, that is the mobile phase, column packing techniques to check the pH of the column, sample loading, column washing, sample elution to check the absorption of all fractions by spectrophotometer to draw a graph between the fractions and absorption. So first of all is the choice of column. So in ion exchange chromatography, which is usually used, columns which are usually used are short and wide columns. That is, the length of the column should be 10 to 15 centimeter and diameter of the column should be 2 to 3 centimeter. So that is the ratio which we will be use or measure before choice of the column in ion exchange chromatography. So next is the choice of water insoluble supporting media, that is resin. Resin is composed of fines. Fines can slow down the separation process, so these fines should be removed before starting the column packing. So these fines are removed by decantation method. What is decantation process? In the decantation process, the resin is dissolved in the distilled water in beaker and with the help of glass rod stir it, then keep it without disturbing. After some time, so if the upper water having cloudy nature, it means that the fines are present, and these fines will be removed by repeating this process 2 to 3 times up till until all the fines are being removed and the upper water will be transparent or will show transparency. So for the making the resin, how we will prepare the resin? First of all, you know that we having the two type of resin or exchanger, that is the cation exchanger and the anion exchanger. Cation exchanger example is CM cellulose and anion exchanger example is DEAE cellulose. So first the CM cellulose first wash with 0.5 normal NaOH and the second wash will be with 0.5 normal HCl. Whereas in DEAE cellulose, first wash with 0.5 normal HCl and second wash with 0.5 normal NaOH. These resins are washed with sodium hydroxide, HCl or HCl and sodium hydroxide in order to expose the acidic or basic group that are present on the resin surface. So in order to expose these acidic or basic group, we will wash these resin in this way, like for the CM cellulose or for the DEAE cellulose, for complete swelling and then for exposing of the acidic and basic groups on the resin. Next is the choice of buffer, so or the mobile phase. So in ion exchange chromatography, two types of buffers are usually used. First is the cationic buffer, other is the anionic buffer. The example of the cationic buffer is tris HCl buffer, that having the NH2 group like this, and the example of the anionic buffer is acetate buffer, that having the cation exchanger along with the acetate group. That is this anionic cationic buffer is used for the anion exchange chromatography, anion exchanger, and anionic buffer is used for the cation exchanger. It means that the fixed charge of the exchanger and the mobile ions of the buffer having the same charge, like here acetate is the mobile ion
and here the negative carboxylic group is on the water insoluble supporting media. So means the charge of the mobile ions should be similar to the fixed charge of the acidic or basic group of the stationary phase. If not, if the fixed charge is positive and the mobile are negative, they must have interact with each other and they will slow down the protein binding to the specific resin. That is why the charge of the mobile and fixed charge on the resin should be same. Then is the column packing. Next topic is the column packing. That is the very much important technique in the physical techniques, in the laboratory technique. How you first of all you choose the column. Column will be empty column is mounted on the stand, like here. You can mount the column with stand. Place the porous disc cotton plug in the bottom of the column, like this is the porous disc that is placed in the bottom of the column. Then vertically place a glass rod in the column, like this. Vertically you can place the glass rod in the column, and then half fill the column with buffer. Column should be half filled with the buffer, and outlet of the column should be closed. Then add resin slurry, either it is anion exchanger or cation exchanger. One type of resin you should use at a time. Then the resin slurry portion wise should be added through this glass rod into the column, and after pouring all the slurry, glass rod will be removed. Next, outlet of the column should be open. Then after placing all the slurry, then outlet of the column should be placed. What will be happen? Resin slurry will start settle down slowly. Then in this way 3 parts of the column are packed with the resin. Means if the column is 100 ml, 75 ml resin and 25 ml space will be placed for the sample application. Next is the after column packing, apply 2 to 3 ml buffer on top of the resin in order to make smooth resin bed and avoid cracking of the column. So these are the different diagrams how you pack the column. How you place the glass rod, how you put the slurry, and how you after gel slurry you place the 2 to 3 ml buffer in order to avoid the cracking of the column. Next is to check the pH of the column. So as I have already told you, that ion exchange chromatography is totally based on the charge of the protein, and charge of the protein is the pH dependent. So the sample pH, the pH of the column and pH of the eluent should be same pH. If pH will not same, the binding of the desired protein will become difficult. So in this case, starting buffer or the eluent pH should be equal to the buffer which comes out of the column. That is the effluent. That is the pH of A should be equal to the pH of B. Wash the column until pH of A equal to the pH of the B. Now check the pH with the help of the pH meter. Now the column is ready to load the sample. When the pH of the effluent equal to the pH of the eluent, यानी जो कॉलम में हम बफर डाल रहे हैं और जो कॉलम से बफर इल्यूट हो रहा है, उन दोनों की pH सेम होनी चाहिए, और उस वक्त तक हम कॉलम को वॉश करते रहेंगे जब तक कि डालने वाले बफर स्टार्टिंग बफर की pH और आउटलेट कॉलम की आउटलेट से आने वाले बफर की pH एक जैसी नहीं हो जाती. नाउ the column, when the pH of the effluent and eluent becomes in equilibrium, then the column is ready to load the sample.
Now sample loading. So your sample should be have the same pH as the pH of the starting buffer and pH of the effluent buffer. आपके सैंपल की जो pH है वो भी उसी वही pH होनी चाहिए. उस वक्त तक आपका जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग नहीं होगी जब तक कि ये सारी pH आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव 2 to 3 ml बफर फ्रॉम टॉप ऑफ द कॉलम. जो हमने टॉप कॉलम के टॉप पे बफर डाला था ताकि कॉलम की जो सरफेस है या बेड है वो क्रैक ना हो, तो उसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल. Then this buffer should be removed by opening the outlet of the column. Then outlet close after removal of all the buffer from top of the column and you seen the gel bed. आप जो ही बफर की 2 से 3 ml की लेयर को रिमूव कर लेंगे ना आउटलेट ऑफ द कॉलम को ओपन करके, तो दोबारा से जो ही वो रिमूव हो जाती है बफर लेयर आपको जेल बेड नज़र आता है. देन यू क्लोज द आउटलेट ऑफ द कॉलम एंड अप्लाई द सैंपल और प्रोटीन सैंपल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट or you can use the adapter by the use of adapter or micropipette. यानी आप एडाप्टर को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल ऑन द टॉप ऑफ द जेल बेड. अब जब आपने कॉलम के बेड के ऊपर सैंपल को अप्लाई करना है, देन हेयर यू कैन take the sample in the micropipette and place this micropipette on the top of the just 2 to 3 centimeter above the gel bed. बिल्कुल जेल बेड के ऊपर आपने पिपट को नहीं लगाना, थोड़ा सा आपने ऊपर पिपट को इस तरह पकड़ना है and then you can apply the sample on the top of the gel bed without avoid the gel bed to disturb without disturbing the gel bed. After sample loading, again outlet of the column should be open in order to absorb the sample into the resin. Automatically जो ही आप कॉलम के आउटलेट खोलेंगे तो सैंपल बफर बाहर आना शुरू हो जाएगा और आपका जो सैंपल जो आपने टॉप ऑफ द जेल बेड के ऊपर डाला है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा जेल के इसके अंदर, रेजिन के अंदर. अगेन व्हेन यू सी the gel bed, then attach the column with the reservoir containing the starting buffer. जो ही सारा सैंपल जो है जेल बेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा से आपको जेल बेड नज़र आना लग जाए, then you can connect the column with the reservoir that containing the starting buffer in order to elute your sample. So wash the column and connect the column with the फ्रैक्शन कलेक्टर और मैनुअली कलेक्ट द फ्रैक्शन. यानी आप मैनुअली भी फ्रैक्शन कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन कलेक्टर के साथ जो है वो लगा सकते हैं और आप जो है उसके साथ जो है आप मैनुअली भी ये कॉलम को इल्यूट कर सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन कलेक्टर के साथ भी आप कॉलम को अटैच कर सकते हैं. फ्रैक्शन कलेक्टर का ये होता है कि उसमें बहुत सारी ट्यूब्स जो होती हैं एट अ टाइम आप लगा देते हैं और उसके नीचे टाइमर लगा होता है. वो टाइमर जो है उसको हम एक ख़ास टाइम तक फिक्स कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि हर 10 मिनट के बाद जो है एक फ्रैक्शन जो है एक ख़ास ml उसमें कलेक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो उसमें ये होता है कि जब हम फ्रैक्शन कलेक्टर के साथ कॉलम को कलेक्ट करते हैं तो हमें खुद बैठना नहीं पड़ता, हम कोई और काम उस दौरान लैब वर्क कर सकते हैं और हमारा अलग आराम से फ्रैक्शन कलेक्ट होते रहते हैं. लेकिन मैनुअली अगर आपके पास फ्रैक्शन कलेक्टर नहीं है देन यू कैन मैनुअली कलेक्ट द फ्रैक्शन. जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने जो है 10 ml फ्रैक्शन कलेक्ट करना है पर 10 मिनट, तो हर 10 मिनट के बाद जो है आप कॉलम 10 ml इल्यूट हो जाएंगे और आप हर फ्रैक्शन को हर 10 ml के बाद 10 मिनट के बाद नया फ्रैक्शन कॉलम के नीचे लगाते जाएंगे. तो मैनुअली भी यू कैन कलेक्ट द फ्रैक्शन और यू कैन आल्सो कलेक्ट द फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कलेक्टर. तो फ्रैक्शन कलेक्टर के साथ ये होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप उस दौरान जो है कोई दूसरा लैब वर्क भी कर सकते हैं, जबकि मैनुअली आपको कॉलम के साथ बैठना पड़ेगा ओवरनाइट या पूरा दिन जितने भी घंटे आपने कॉलम को चलाना है.
During column washing, all the unwanted protein will be eluted, whereas your desired protein is now bound to resin, आइदर कैटाइन एक्सचेंजर और एनाइन एक्सचेंजर। यानी जब आप कॉलम को वॉश आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, जब आप कॉलम के फ्रैक्शन कलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलम की वॉशिंग के दौरान जो है आपकी जितनी भी प्रोटीन इल्यूट होगी वो अनडिज़ायर्ड या अनवांटेड प्रोटीन होगी, जो कि कॉलम की वॉशिंग के दौरान जो है आपको इल्यूट हो जाएगी, और सिर्फ आपकी जो बाउंड प्रोटीन है वो वॉशिंग के दौरान इल्यूट नहीं होगी। अब उस बाउंड प्रोटीन को आपने कैसे इल्यूट करना है? बाय यूजिंग द लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट के ज़रिए से जो है आप अपनी बाउंड प्रोटीन को फिर जो है, अब ये कैसे पता चलेगा कि अब अनवांटेड प्रोटीन सारी की सारी इल्यूट हो गई है? तो आप जो है जितने फ्रैक्शन आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं उनकी साथ साथ आप एब्जॉर्बेंस नोट करते जाएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए। जो ही प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस 0 पे पहुँच जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपकी जो अनवांटेड प्रोटीन है वो सारी की सारी इल्यूट हो गई है, और अब आपके जो बाउंड प्रोटीन है उसको आपने इल्यूट करना है। तो उसको आप उस बाउंड प्रोटीन को आप इल्यूट किस तरह करेंगे? बाय यूजिंग द लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल साइज सिलेंडर। इक्वल साइज सिलेंडर होते हैं। ये सिलेंडर जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ थ्रू द ब्रिज कनेक्टेड होते हैं, यानी इस तरह के दो सिलेंडर एक साइज के हैं और वो जो है एक दूसरे के साथ एक ब्रिज के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ये कॉलम ये सिलेंडर 1 है या ये सिलेंडर 2 है। जो सिलेंडर 1 है उसमें भी आप बफर डालेंगे, सिलेंडर 2 में भी आप बफर डालेंगे इक्वल क्वांटिटी का। क्या फ़र्क होगा कि जो आपके पास जो सिलेंडर 2 है उसके अंदर जो है आपने बफर के साथ साथ आपने सोडियम क्लोराइड भी डालना है, क्योंकि यहाँ लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अब हम डिज़ायर्ड प्रोटीन को इल्यूट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। अब ये आयनिक स्ट्रेंथ किस तरह से इंक्रीज होगा? बाय एडिंग द सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द बफर। और जब आपका जो फर्स्ट सिलेंडर है दैट आल्सो हैविंग द मैग्नेटिक स्टीरर, ताकि वो स्टीयरिंग करता रहे। अब इस सिलेंडर को जो है आपने कॉलम के साथ कनेक्ट करना है और कॉलम को आपने जो है आपने फ्रैक्शन कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। जो कॉलम इल्यूट होता जाएगा व्हाट विल बी हैपन कि यहाँ पर जो बफर का लेवल है वो कम होता जाएगा, और जो बफर का लेवल जहाँ कम होगा तो यहाँ से सिलेंडर 2 से सोडियम क्लोराइड वाला या ग्रेटर आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर इधर आना शुरू कर दे हो जाएगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो कॉलम इल्यूट होता जाएगा बफर की आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। यानी आप देखें कि स्टार्ट में बफर जो आएगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड कम होगा, जो आता जाएगा तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी आयनिक स्ट्रेंथ बफर बढ़ती जाएगी बफर की इस सिलेंडर में। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आयनिक स्ट्रेंथ ऐसी आप आन पहुंचेगी कि योर डिजायर्ड प्रोटीन विल बी इल्यूटेड एंड यू विल चेक द दिस फ्रैक्शन। अब यहाँ पर एरो लगाएंगे कि यहाँ से हमने जो है लीनियर ग्रेडियंट यानी हमने आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया है ताकि हमारी जो बाउंड प्रोटीन जो कॉलम के साथ बाउंड है वो इल्यूट हो जाए। तो इन फ्रैक्शंस में यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास बाउंड प्रोटीन आएगी। जितनी भी आप एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो आपकी बाउंड प्रोटीन आएगी, यानी जो डिजायर्ड प्रोटीन होगी वो इल्यूट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखें ये कॉलम का मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के बताया है कि दिस इज़ द कॉलम दैट इज़ पैक्ड बाय आइदर कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर। दिस इज़ द रिकॉर्डर और डिटेक्टर and that is connected with the spectrophotometer that check the absorbance, and here is the fraction collector in which the different test tubes are arranged, and different test tubes are arranged as 1 2 3 4
and we can fractions are collected here. The column is connected with the pump. ये pump का क्या फंक्शन है? ये pump जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ बफर को कॉलम तक लाता है ताकि जो है इक्वल वॉल्यूम के फ्रैक्शन जो है कलेक्ट हो सके. एंड हेयर अलॉन्ग ये पेरिस्टाल्टिक पंप होता है जो कि कॉलम में इक्वल वॉल्यूम ऑफ बफर को जो है एक वक्त में अप्लाई होता है, कॉलम के ऊपर बफर आता है थ्रू दिस पेरिस्टाल्टिक पंप, और वॉल्यूम इसका जो है यानी हम कांस्टेंट वॉल्यूम को कलेक्ट कर सकते हैं. और ये आपके पास जो है लीनियर ग्रेडियंट है जिसके अंदर एक में जो है मैग्नेटिक स्टीरर है और ये सेकंड सिलेंडर है और ये फर्स्ट है. फर्स्ट में आपके पास साल्ट और बफर है और साल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड होती है और यहाँ पर सिमिलर वही बफर होते हैं लेकिन सिंपल बफर होते हैं. यहाँ से जो है आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी और यहाँ से कॉलम में भी आयनिक स्ट्रेंथ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी और एक ऐसा फ्रैक्शन ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है इल्यूट हो जाएगी. ये आपका जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. यहाँ पर दीज आर द डिफरेंट फ्रैक्शन नंबर एंड हेयर इज़ डेल्टा 280 नैनोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली जो आप एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ द कॉलम दिस अनवांटेड प्रोटीन विल बी इल्यूटेड. दोबारा से यहाँ पर आपकी प्रोटीन जब ज़ीरो हो जाती है तो तब आपने लीनियर ग्रेडियंट लगाना है यानी ये वाला, और योर डिज़ायर्ड प्रोटीन इज़ इल्यूटेड. जहाँ पे जो है एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और फिर डिक्रीज़ होगी वो फ्रैक्शन आप पूल कर लेंगे और ये फ्रैक्शन जो है आपके पास डिज़ायर्ड प्रोटीन के आएंगे जो कि आइदर कैटाइन एक्सचेंजर या एनाइन एक्सचेंजर के साथ बाउंड हो गई. अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगी तो ऑटोमेटिकली एनाइन एक्सचेंजर पे कैटाइन एक्सचेंजर पे हमारी अगर डिज़ायर्ड प्रोटीन पॉजिटिवली होगी तो कैटाइन एक्सचेंजर पे बाउंड होगी. अगर हमारे जो डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है वो नेगेटिव होगी तो वो एनाइन एक्सचेंजर पे इस तरीके से बाउंड होगी और इस तरीके से हम इसको इल्यूट कर लेंगे. अब जो है इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इल्यूशन रेट. तो आप इल्यूशन रेट का ये होता है कि जितना कॉलम के ऊपर आप सैंपल अप्लाई करती हैं जितना स्लोली अप्लाई करेंगी उतना ही बेस्ट उसकी एड्जॉर्प्शन होगी. तो सैंपल को स्लोली अप्लाई करें ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम. इनिशियली जब तक सैंपल जो है कम्प्लीटली एड्जॉर्ब नहीं हो जाता उस वक़्त आप जो है उसका रेट जो है स्लो रखेंगे. फिर आप जब आपकी कॉलम वॉशिंग होती है, वॉशिंग के दौरान आपने कॉलम का फ्लो रेट जो है ज़्यादा रखना है ताकि अनवांटेड प्रोटीन जल्द अज जल्द उससे इल्यूट हो जाए. और फिर जब आप अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन इल्यूट करने वाले हैं यानी लीनियर ग्रेडियंट उस वक़्त भी आपने कंपैरेटिवली कॉलम का जो फ्लो रेट है वो स्लो रखना होगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो कम्प्लीटली इल्यूट हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क. अल्लाह हाफिज़.